My dear sisters, I'm so glad to see you all. और मेरी प्रिय बहनों, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको देखकर। Isn't it so wonderful that we all sisters from different parts of the country and the world can meet together like this? और ये कितना ही अद्भुत है कि हम पूरे जो देश है और बल्कि दुनिया के अलग-अलग जगहों से इस तरीके से मिल सकती हैं। God has been so good to us to make this possible. और प्रभु इतना भला है कि उसने इस बात को हमारे लिए संभव किया। And we look forward to a day when Jesus, the Lord Jesus, will gather all his children in his glorious together, in his glorious kingdom to be together. और हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब प्रभु अपने उस महिमा में राज्य में हम सबको इस तरीके से इकट्ठा करेगा। So let's spend look to the Lord and thank him for a minute. और आइए कि हम कुछ क्षण के लिए प्रभु की तरफ देखें और उसे धन्यवाद करें। Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we thank and praise you for this wonderful opportunity you've given us. और इस अद्भुत मौके के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। You kept us safe until now और अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा and brought us together so we can be together in your presence. और हमें इस तरीके से मिलाया ताकि आपकी उपस्थिति में हम सब मिल सके। And we want to praise and thank you, Lord. और प्रभु हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं। And Lord, we know that the Holy Spirit is our teacher. और हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा हमारा वो टीचर है। So you please teach us, Lord. और इसलिए प्रभु आप हमें सिखाइए। We look to you in faith. और हम विश्वास के साथ आपकी तरफ देखते हैं। We ask in Jesus' precious name. और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। Amen. So, this evening, I thought I'll tell you a story. और इस शाम को मैंने सोचा कि मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। We all like to listen to stories. और हम सब उन कहानियों को सुनना पसंद करते हैं। This story is a true story from the Bible. और ये जो कहानी है वो एक सच्ची कहानी है बाइबल में से। Have your Bible open, you can open to the book of Esther. और आप सबके पास अपनी बाइबल है तो आप जो एस्तर की किताब है उसे खोलें। Now, some of us may know most of us know the story, but some may not know the story. और हम में से अधिक इस कहानी को जानते होंगे पर शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। So I'll tell the story very briefly, and then I'll say some lessons we can learn from that story. और इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में ये कहानी बताऊंगी और उसमें से जो पाठ हम पढ़ते हैं सीखते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। Many centuries before Christ came into this world, और बहुत शताब्दी पहले प्रभु यीशु के इस संसार में आने से पहले God wanted to choose a nation into which Jesus could be born. और प्रभु ने उस देश को चुनना चाहते थे जहां प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। So he chose one man called Abraham, और प्रभु ने अब्राहम को चुना and then his descendants, and became a nation called the Israel. और उसके जो वंशज थे वो एक देश बने जिसे इज़राइल कहा गया। They went into Egypt. First they were well treated, afterwards they became like slaves. और वो मिस्र देश में गए। शुरू में तो उनके साथ अच्छा बर्ताव हुआ पर बाद में वो वहां पर गुलाम बना लिए गए। Then God brought them back and gave them this country of Israel. और फिर प्रभु ने वापस लेके आया और इज़राइल देश उनको दिया। And God told them before they entered, he gave them some laws to obey. और वहां जाने से पहले प्रभु ने उनको कुछ नियम दिए जिनका उन्हें पालन करना था। If you read in the Old Testament, we can read in Exodus and the books in the Bible, Old Testament, the laws which the Lord gave. और हम व्यवस्था विवरण में पढ़ सकते हैं वो जो नियम प्रभु ने उनको दिए। And God said, if you keep these laws, I'll bless you. If you disobey, I'll punish you. और प्रभु ने कहा कि अगर आप ये नियम रखोगे तो मैं आपको आशीष दूंगा और अगर आप इनको नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। And he kept warning and warning them. Sometimes they'll obey, sometimes they disobey. और प्रभु बार-बार उनको चेतावनी देते थे, कई बार वो मानते थे और कई बार वो बात नहीं आज्ञा मानते थे। And finally, after many prophets' warning, God had to punish them.
और बहुत सारे जो प्रॉफिट थे उन्होंने उनको चेतावनी दी और उसके बाद प्रभु को उन्हें पनिश करना पड़ा। And as he warned, he sent them as captives to many nations. और प्रभु ने जैसे कहा था वैसे उन्हें उन्हें जो बंधुआ बनाकर काफ़ी देशों में उन्हें भेजा गया। And the way they were sent was very difficult. और जैसे उन्हें भेजा गया था वो जो रास्ता था वो बहुत कठिन था। Some families were split up, children were sent to one country, parents, uncles, aunts to different countries. और माता-पिता को एक देश में भेजा गया और जो बच्चे थे उनको अंकल आंटी को दूसरे देश में भेजा गया। And they were scattered to many countries. और वो जो थे बिछड़ गए थे अलग-अलग देशों में। But still, God had mercy on his people. फिर भी प्रभु ने अपने लोगों पर दया की He promised that he'll bring them back one day. और प्रभु ने उनसे वायदा किया कि एक दिन वो उनको ज़रूर वापस लेके आएगा। So, the story I'm going to say begins in a land of Persia, which is now Iran. और मैं जो कहानी आपको बताने वाली हूँ वो जो है उसे पर्शियस या फ़ारिस कहते हैं जो अब जो है ईरान देश है। We know a lot of battles are going on in Iran and Israel, so we can connect with these two countries now. और हम जानते हैं कि इज़राइल और जो ईरान है वहाँ पर बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं इसलिए हम उससे अपने आप को जोड़ सकते हैं। So, in that country of Persia, there was a little orphan girl called Esther. और उस देश में एक अनाथ लड़की थी जिसका नाम एस्तेर था। And because she didn't have parents, her kind cousin, old cousin called Mordecai, brought her up. और क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं माता-पिता नहीं थे तो उसका जो दयालु भाई था मर्दके वो उसको लेकर आया। Can you imagine orphan girl living in a strange country क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक अनाथ लड़की एक अनजाने देश में हो and new language, different culture, everything different. और एक नया देश है, नया उसकी रीति-रिवाज कल्चर है, उसकी भाषा अलग है, सब कुछ नया है। And she grew up like that, and her uncle gave her good guidance. और वो इस तरीके से बढ़ी पर जो उसके अंकल थे उसने उसे अच्छे से सारी चीजें सिखाई। And in that country, the king was a very great king. और उस जो देश में था, जो वहाँ का राजा था, वो बहुत ही ग्रेट किंग था। His kingdom stretched from Ethiopia, Africa to India. Even India comes in that. और उसका जो देश था वो ऐसा लिखा है कि हिंदुस्तान से लेके कुश देश तक फैला हुआ था 127 provinces and different languages. और 127 जो प्रांत थे और अलग-अलग भाषाएं उसके अंदर थी And he was very rich. और वो बहुत अमीर था। So one day he decided to have a big celebration for 7 days, celebrating his greatness. और एक बार उसने ये निर्णय लिया कि उसकी जो भव्यता है उसको उसको मनाने के लिए उसने एक बड़ा भोज रखा And he called all the important people and had a big celebration, wine and food and all that. और बहुत ज्यादा उन्होंने वहां पर उससे उत्सव मनाया और बहुत सारे उनको राजों को बुलाया वहां पे शराब खाना वो सारी चीजें वहां पर थी And they were all very happy and celebrating like that. और वो बहुत खुश थे और वहां पे वो उत्सव मना रहे थे In that drunken state, the king thought, I'll ask my beautiful wife and show her off the Queen Vashti to everybody. और जब वो उस शराब पिए हुई अवस्था में था उस समय उस राजा ने सोचा कि मैं मेरी जो सुंदर पत्नी है उसको मैं बुलाऊंगा और बाकी इन सब लोगों को मैं दिखाऊंगा And he called us, asked somebody, bring my queen here. और उसने उनसे कहा कि मेरी जो रानी वश्ती है उसको इधर बुला के लाओ But the queen thought, this, my king is half drunk, I don't want to go. पर रानी ने सोचा कि मेरे पति ने तो शराब पी रखी है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी And she didn't go. इसलिए वो नहीं गई And the king was upset about that. और राजा जो था उसके कारण बहुत नाराज हुआ And his advisors told him, you see, the queen didn't obey you. This is a bad example to all women in this country.
और जो राजा को सलाह देने वाले थे, उन्होंने कहा कि देखो, रानी ने आज्ञा नहीं मानी है, अब वो एक बुरा उदाहरण है इस देश में। All the women in the country will start despising their husband and not honoring their husband. और हमारे देश में भी जो स्त्रियां हैं, वो अपने पति को तुच्छ मानेगी और उनकी आज्ञा नहीं मानेगी। So put her away. इसलिए उसको दूर कर दो अब। So the king listened to the advice and sent off his wife. इसलिए राजा ने जो उसकी सलाह देने वाली थी, उनकी बात मानी और उसको उस पद से हटा दिया। Afterwards, when he became sober, he said, "What a foolish thing I did. I sent away my good wife." और जब वो होश में आया, तब उसे एहसास हुआ कि मैंने कितनी मूर्खता की, मैंने अपनी पत्नी जो अच्छी थी उसको दूर कर दिया। Then his advisor said, "Don't worry, we'll call all the pretty virgins and you select one of them." और फिर उसके जो सलाह देने वाले थे, सलाहकार, उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हम जितनी भी जो कुंवारी हैं और जो सुंदर है स्त्रियां, लड़कियां, हम उनको उनमें से चुनेंगे आपके लिए। So all of them were brought, and Esther was forced to come like that because it was a law. और उन सबको बुलाया गया और एस्तर को भी बुलाया गया, क्योंकि उस समय ये नियम था। And 12 months they had preparation, oils and perfumes to prepare. और 12 महीने वहां पर तैयारी थी, जहां पर इत्र जो है और अलग अलग जो तेल है वो लगाया जाता था। And they one by one had to go before the king. और एक एक करके उनको राजा के सामने जाना होता था। Now it doesn't say that Esther was the most beautiful, but when she went, the king liked her. और ऐसा नहीं लिखा कि एस्तर जो थी वो सबसे सुंदर थी, पर ऐसा लिखा है कि जब वो राजा के सामने गई, तो राजा ने उसको पसंद किया। Because already his wife, previous wife Vashti, was very beautiful queen. क्योंकि जो उसकी पहले की पत्नी थी वष्टी, वो बहुत ही सुंदर थी। But this one he saw was different. There's something in her which he liked. पर ये जो एस्तर को जो उसने देखा, वो कुछ अलग था और उसने उसको पसंद किया। So he decided and he put the crown on her head and made a big celebration for her. और उसने उसके सिर पर वो ताज को रखा और एक बड़ा उत्सव मनाया। And she became the queen. और फिर वो रानी बन गई। But in the palace, life in the palace is not like living a free person as a free person. पर जो महल में जो जीवन है, वो इतना आसान नहीं है, वो एक आजाद मनुष्य के जैसे रहने का नहीं था। If you ask the wives of these sheikhs now in Middle East, they'll tell you how their life is. और मिडिल ईस्ट में जो शेख्स की जो पत्नी होती है, अगर आप उनसे पूछे तो आपको पता चलेगा कि कैसा वहां का जीवन होता है। For months or weeks, they may not be able to see their husband even. और महीने और हफ्तों तक वो अपने पति को भी नहीं देख पाती। They live with grand style, but they are cut off from their people. वो बहुत ही भव्य उसमें रहती है, पर अपने लोगों से ही वो मानो कटी हुई रहती है। So Esther had no contact with her people. इसलिए जो एस्तर थी, उसका अपने लोगों से कोई भी अभी रिश्ता या संबंध नहीं था। Then, but looking outside, she saw her guardian Mordecai was always sitting at the gate. पर वो जब बाहर देखती थी महल से, तो वो हमेशा जो मुर्द के उसके अंकल थे, वो हमेशा उन्हें वहां बैठे हुए दिखते थे। Was interested, keen to know, is my little cousin daughter, is she okay? Is she happy? He wanted to get some news from her. और जो मुर्दके था, वो हमेशा इस बात को जानने के लिए इच्छुक रहता था कि जो मेरी छोटी बेटी जो कज़न है, एस्थर, क्या वो ठीक है? So God provided, and that was a comfort for her. और प्रभु ने प्रयोजन किया, और ये एक सांत्वना जैसा था एस्थर के लिए। And in the palace, she had some maids with whom she could share and pray a little bit. और उस महल में कुछ उसकी सेवा करने वाली सेविका थी, जो जिनसे वो बात कर सकती थी, उनके साथ प्रार्थना कर सकती थी। One day, when Mordecai was sitting, he overheard some people planning to kill the king. Pardon? One day, when Mordecai was sitting, he heard that some people were planning to kill the king. और एक दिन जब मुर्दके बैठे था, तो उसने सुना कि कुछ लोग जो है राजा को मारने की नीति बना रहे हैं। And he told Esther, Esther told the king. और फिर उसने एस्तर को बताया और एस्तर ने राजा को बताया। And the king dealt with it. He finished off those people who were plotting.
और जो लोग राजा को मारने की योजना बना रहे थे, राजा ने उनको मार दिया। Now, while Mordecai was sitting there was one top official called Haman. और जब मुर्दकी वहां बैठा था तो एक बड़ा अधिकारी जो था हामान वहां पर था। The king gave him a very good position in the cabinet. और जो राजा ने हामान को है बहुत ऊंचा पद दे रखा था। And in the Bible it says he was the enemy of the Jews. और बाइबल में ऐसा लिखा है कि हामान जो था वो इजरायलियों का शत्रु था। We have an enemy, or the Satan is our enemy. और हमारा भी एक शत्रु है और हम जानते हैं कि शैतान वो हमारा शत्रु है। So Haman was like a Satan in that country. और हामान जो था मानो शैतान की तरह उस देश में था। And whenever he passed by, he asked the king to make this rule. Everybody must bow down to Haman when he passes by. और उसने इस तरह का नियम बनाया था कि जब हामान जब जाए तो हर कोई उसके सामने सिर झुकाए। And Mordecai didn't bow down. पर जो मुर्दकी था उसके आगे सिर नहीं झुकाता था। There was one person later on who didn't bow down to Satan. We know who that is. और आप जानते हैं कि एक व्यक्ति था जो शैतान के सामने नहीं झुका। Our Lord Jesus. हमारे प्रभु यीशु मसीह। Satan said, "You bow down to me, I'll give you all the earthly things." But Jesus said, "You should worship only God." और शैतान ने प्रभु से कहा कि तू मुझे दंडवत कर तो ये सारा जो बातें हैं इस दुनिया की मैं तुम्हें दूंगा, पर प्रभु यीशु मसीह उसके सामने नहीं झुके। So Haman was furious and he found out Mordecai is a Jew. और जो हामान था वो बहुत गुस्से में था और उसे पता चला कि जो मुर्दके है वो यहूदी है। So he asked the king to sign a law, kill all the Jews. और फिर उसने राजा से एक ऐसा पत्र साइन कराया कि सारे यहूदियों को मार दिया जाए। And first of all, build a big thing to hang Mordecai. और उसने जो है मुर्दके के लिए एक बड़ा सा फांसी का फंदा बनाया। And Mordecai heard about it and he was crying. और मुर्दके ने इस विषय में सुना और वो रो रहा था। And Esther, from inside the palace, she saw, why is my cousin crying like this? और एस्तर ने अपने महल से देखा कि मेरे अंकल जो है वो इस तरीके से क्यों रो रहे हैं। Wearing all these dirty clothes and crying in sorrow. और ऐसे गंदे वस्त्रों को पहनकर दुख के साथ वो क्यों रो रहे हैं। And she found out what happened. और फिर उसे पता चला कि क्या हुआ है। So she called Mordecai and talked to him. और उसने मुर्दके को बुलाया और उससे बात की। And Mordecai told her something very important. और मुर्दकाई ने उससे बहुत एक जरूरी बात कही। First of all, Esther comforted Mordecai and gave him some good clothes. और सबसे पहले एस्तेर ने जो मुर्दके को है सांत्वना दी और अच्छे कपड़े दिए कुछ। And then Mordecai told her something very, very difficult. और फिर उसके बाद मुर्दके ने कुछ बड़ी कठिन बात उससे कही। He said, you have to talk to the king and tell him about this. और उसने कहा कि तुम्हें राजा से बात करनी होगी और ये बात राजा को बतानी होगी। And God has put you in this palace at this time for a particular reason. और प्रभु ने तुम्हें इस राजभवन में इसी कारण से इसी बात के लिए रखा है। If you don't do it, God will rescue the Jews through someone else. और अगर तुम ये नहीं करोगी तो प्रभु किसी और के माध्यम से यहूदियों को बचाएगा। And so be bold and tell the king. और इसलिए तुम दृढ़ हो और राजा से ये बात कहो जाकर। If you have your Bible open and you can read to yourself, I'll read that in the end. Esther chapter 4 from verse 12, 13 onwards, very beautiful verses are there. Should I read, sister? No, we'll read in the end. Okay. So the queen, she said, it's going to be very difficult because nobody is allowed to go to the king until they are called. और एस्थिर ने कहा कि ये तो बहुत कठिन है क्योंकि कोई भी राजा के सामने तब तक नहीं जा सकता जब तक कि उसे बुलाया ना जाए। If I go and he hasn't called me for 30 days, if I go now, I'll be killed. और 30 दिनों से उसने मुझे नहीं बुलाया और अगर मैं गई तो मैं मारी भी जा सकती हूँ। Previous queen,
she was just sent away. But me, I might be killed. और जो मुझसे पहले रानी थी उसको तो दूर कर दिया गया, पर मुझे तो शायद मार दिया जाए। And chapter 4, verse 15, she said, if I perish, I perish. If I die, let me die. और उसने कहा कि अगर मैं नाश हूँ तो हो जाऊँ, और अगर मैं नाश हो जाऊँ तो हो जाऊँ। And that is the boldness God gave her. और यही जो हियाव है प्रभु ने उसको दिया। Then she uh, decided, and she told her cousin, and she and her maids decided to fast and pray for 3 days. और फिर उसने अपनी सेविकाओं के साथ ये निश्चय किया कि वो 3 दिन के लिए उपवास रखेंगे। And after 3 days, she put on her good clothes and went to the king. और उसके बाद 3 दिन के बाद उसने अपने अच्छे वस्त्र धारण किए और राजा से मिलने गई। If the king wanted to talk to her, he would put out his that thing which he had in his hand is called scepter. और अगर राजा उससे बात करना चाहते जो, तो राजा के हाथ में जो सोने का राजदंड होता था वो उसको दिखाता था। And if he didn't do that, she would have to be killed. और अगर राजा ऐसा नहीं करता तो फिर उसे मारा जाना, एस्तेर को मार दिया जाना पड़ेगा। She took the risk, and the king said, "What do you want, dear queen? I'll tell me your request." और उसने एस्तेर ने ये संकट उठाया और वो राजा के सामने गई और राजा ने उससे कहा कि हे एस्तेर रानी, तू क्या चाहती है, तू क्या मांगती है? And she didn't say, "Oh, this is my sad thing." She didn't tell anything. So at और that उसने time, ऐसे नहीं कहा कि देखो ये दुख भरी बात है, देखो ऐसा है। she was wise. She said, "Please, king, you and Haman can come for dinner tonight." और वो बहुत बुद्धिमान थी, उसने कहा कि हे राजा, आप और हामान भोजन के रात के भोजन के लिए घर पर आए। Haman was so thrilled. और जो हामान था वो बहुत ही खुश हो गया। But while they were praying, God is acting. और आपको पता है जब वो प्रार्थना कर रहे थे तब प्रभु काम कर रहा था। That night, the king couldn't sleep, and he said to his people, "Bring some history books, read that to me." और उस रात जो है राजा को नींद नहीं आई और राजा ने कहा कि जो इतिहास की पुस्तक है वो लाई जाए और मुझे पढ़कर सुनाई जाए। So they read about this Mordecai, what happened when Mordecai saved his life. और फिर उन्होंने मोर्देकाई के विषय में पढ़ा कि कैसे मोर्देकाई ने राजा की जान को बचाया। So he said, "Did we do anything to thank Mordecai?" They said, "No." तो राजा ने पूछा, तो क्या फिर हमने मोर्देकाई को धन्यवाद देने के लिए कुछ किया? उन्होंने कहा नहीं। And then in the morning Haman came to the palace, and the king told him like this. और फिर सुबह जब हुई तो जो हामान था वो आंगन में था, फिर राजा ने हामान से यूं कहा। What should I do if I want to honor somebody? तो राजा ने हामान से कहा कि अगर मैं किसी को का प्रतिष्ठा करना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? And Haman thought, it's me only. King wants to honor me. और हामान ने सोचा ये तो मैं ही हूँ जिसे राजा जिसका आदर करना चाहता है। He said, he said, put him on your horse and put your ring on his finger and take him round the town and say, the king will honor such people whom he's happy with. और फिर हामान ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो राजा की अंगूठी पहनाई जाए, राजा के वस्त्र पहनाया जाए और फिर राजा के घोड़े पे ले जाके कहा जाए कि देखो ये व्यक्ति ऐसा है जिसका आदर राजा करना चाहे। So king said, do that to Mordecai. फिर राजा ने कहा कि ठीक है, मोर्देकाई के साथ तुम ऐसा ही करो। Haman got the shock of his life, but he had to do it. और हामान को जो है बहुत ही शौक लगा, पर उसको ऐसा करना था। And when he came back, he told his wife, he said, if Mordecai is a Jew, you're in bad trouble. और उसने कहा कि अगर मोर्देकाई अगर यहूदी है तो फिर वो संकट में है। So they went for dinner. Haman and king had dinner with the queen. और फिर हामान और जो राजा है वो भोजन के रात के भोजन के लिए गए। And king asked, what is it you want, my dear queen? और राजा ने कहा कि मेरी प्रिय रानी, क्या है जो तुम चाहती हो? Said, come tomorrow also for dinner. तो उसने कहा कि आप कल भी भोजन के लिए आइए। And tomorrow, next day also, they came for dinner. और अगले दिन भी वो भोजन के लिए आए। Then he asked, what is it bothering you, my dear queen?
और फिर राजा ने पूछा कि मेरी रानी क्या बात है जो तुझे सताती है? She said, how can I bear it that me and my people are destined to be killed? और उसने कहा कि मैं क्या क्या करूँ? मैं और मेरी जाति के जो लोग हैं, वो तो अब नाश करने के लिए ठहरा दिए गए हैं। If we were sold as slaves, that would have been better. But you put a law that of us should be killed. अगर हमें दास और दासी करके बेच दिया जाता तो भी मैं चुप रहती, पर अब तो ये नियम आया है कि हम सबको मृत्यु दी जाए। Then the king asked, who did that to you? तो राजा ने पूछा कि ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया? He said, this Haman, he made you sign this law that me and my people should be killed. I am a Jewish woman. और उसने कहा कि ये जो हामान है आपसे ऐसा उसने जो पत्र है साइन करवाया ताकि जो यहूदी लोग हैं मारे जाए और मैं भी यहूदी हूँ। Until now, Mordecai had said, don't tell anybody you're a Jew, but now is the time that you have to tell that you're a Jew. और अब तक मोर्दके ने एस्तेर से कहा था कि तुम किसी से मत कहना तुम यहूदी हो, पर अब समय आ गया तुम उनसे कहो कि तुम यहूदी हो। So the king was angry and he went out to get over his anger. और जो राजा था वो बहुत ही क्रोध हो गया और अपने क्रोध को निकालने के लिए वो बाहर गया। And Haman thought to do, please, he fell on at Esther's queen's couch to beg her, please save me. और फिर जो हामान जो था वो रानी एस्तेर के जो काउच है उसके पास आकर कहने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ। But the king saw this Haman is even falling on the couch of his wife, and he was more furious. और जब राजा ने देखा कि ये जो हामान है वो मेरी जो रानी है उस पर ही गिर रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा और गुस्से में हो गया। So he condemned Haman to be killed, और फिर उसने कहा कि हामान को जो है मार दिया जाए। and he was hanged on the same gallows on which he planned to kill Mordecai. और फिर वो उसी फांसी पर चढ़ाया गया जिसे उसने मुर्दके के लिए बनाया था। Now, what to do about the king's law that all Jews should be killed? The queen begged him. और फिर वो जो नियम बनाया गया था कि सारे यहूदी मार दिए जाए उसका क्या करे? और फिर रानी ने राजा से इस बात की विनती की। The king said, once I made a law, I can't change it, but you can do something to protect yourselves. और मैंने जो एक बार नियम बना दिया है मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, पर तुम एक चीज कर सकते हो अपने आपको बचाने के लिए। So he sent messengers all over. All the Jews can do whatever they can to protect themselves. और फिर उन्होंने ये समाचार भेजा कि जो भी यहूदी अपने आप को बचाने के लिए कर सकते हैं वो करें। And so the whole country knew the king is supporting the Jews now. और देश जानते थे कि अब जो है राजा यहूदियों को सपोर्ट कर रहा है। So the Jews had the victory on that day. और फिर यहूदियों को उस दिन जय मिली। And some people who were not Jews, they said, we want to be called as Jews, at least we'll be safe. और जो लोग यहूदी नहीं थे वो बोलने लगे कि हमें भी यहूदी कहा जाए ताकि हम भी बचाए जाए। And there was big celebration, and a national holiday called Purim started from that day. और फिर जो है बड़ा जो उत्सव मनाया गया और जैसे एक नेशनल हॉलिडे जैसा उस दिन डिक्लेयर किया गया। And there were some Jews in Cochin, in India also. They used to celebrate Purim. Even till now, I think they celebrate Purim. और जो अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं इवन इंडिया में भी जो प्यूरिम करके जो है उस उत्सव को मनाते हैं। So that is became a celebration for many, many centuries after that. और बहुत शताब्दियों तक ये जो है एक उत्सव बन गया। That is the story. Now, I want to say things which we can learn from the story. और ये वो कहानी है, अब मैं वो बातें कहना चाहती हूँ जो इस कहानी से हम सीख सकते हैं। Now, after hearing the story, hope you are not sleepy. Please continue to listen. और इस कहानी को सुनने के बाद मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सो नहीं गए हैं। First of all, why did God punish them, the Israelites? और क्यों प्रभु ने जो इज़राइली थे उनको उनको जो पनिश किया? He gave many laws, but few most important laws I'll tell you, which they disobeyed.
और प्रभु ने उनको बहुत सारे नियम दिए, बट कुछ जो नियम थे बहुत ही महत्वपूर्ण जिसकी उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। Children of Israel were living in places where other gods were worshipped, all other gods. और इज़राइली जो थे ऐसी जगह पर रहते थे जहाँ पे दूसरे देवी देवताओं की पूजा होती थी। And God said, I am the true God. और You प्रभु have to ने worship only me. और प्रभु ने उनसे कहा कि मैं ही सच्चा परमेश्वर और तुम्हें मेरी ही आराधना करनी है। And don't worship any other God which you see in the nations around you. और किसी और देवता की तुम पूजा मत करना जिसे तुम उन देश में आसपास देखते हो। But many centuries later, they started worshipping the heathen gods. और कई शताब्दियों के बाद फिर से वो जो है वो उन मूर्तियों की पूजा करने लगी। And even though God warned them, they still, some people stopped. Some kings made the others worship. It went on like that. और प्रभु ने जब उनको चेतावनी दी तो कुछ लोग रुके, बट कुछ जो राजा है उन्होंने लोगों को ये सारी चीजें करवाई उनसे। Now, God has called us, many of us from different backgrounds, but we should keep that decision in our heart. We will worship only God. और प्रभु ने हमें अलग-अलग पृष्ठभूमि से बनाया है, पर हमें हमारे हृदय में इस बात का निश्चय करना है कि हम केवल प्रभु की ही आराधना करेंगे। And God said, don't make any idols and worship idols. और प्रभु ने उनसे कहा कि कोई भी मूर्ति मत बनाना और ना ही मूर्तियों की पूजा करना। We stopped worshipping idols, but many idols are there in our hearts now. और उन्होंने मूर्तियों की पूजा करना बंद कर दिया, पर बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो हमारे हृदय में है। Gold, clothes, wealth, job, all can be idols for और us. वो सोना, कपड़े और नौकरी और अलग-अलग चीज़ें वो जो है एक मूर्ति है। Anything that takes first place in our life and takes place of God can become an idol. और कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रभु का स्थान हमारे हृदय में लेती है, वो एक मूर्ति बन जाती है। For some people, their children are their idols. और कुछ लोगों के लिए उनके बच्चे उनकी वो मूर्ति है। Their job or their husband's jobs become idol. और उनकी नौकरी, उनके पति, उनकी जॉब वो उनका मूर्ति बन जाती है। Or wealth, collecting more and more clothes, और उनका जो पैसा है और या उनकी जो कपड़े हैं more and more steel vessels. और जो दुनिया की जो चीज़ें हैं, अर्थली वेसल उनको लेना। Whatever it is, we have to ask God, Lord, I don't want to have any idol in my life. और वो कुछ भी हो हमें प्रभु से माँगना है कि प्रभु मैं मेरे जीवन में कोई भी ऐसा जो मूर्ति है वो नहीं चाहती हूँ। Please show me, is there any idol in my life, Lord? I want to put it away. प्रभु मुझे दिखाइए कि कोई भी ऐसी मूर्ति जो है प्रभु मैं उसे दूर करना चाहती हूँ। Then God said, you should remember to keep the Sabbath day holy, one day in a week. और फिर प्रभु ने उनसे कहा कि जो शब्द का दिन है उसे रखना तुम याद रखना। For us, it's not one day, but every day is a Sabbath for us. और हमारे लिए जो है सिर्फ एक दिन नहीं पर हर दिन वो शब्द का दिन है। If you read the book of Hebrews, it says that God has given a Sabbath rest to his people. अगर हम इब्रानियों की पुस्तक पढ़े तो हम देखते हैं कि जो वो जो शब्द है का दिन जो है प्रभु ने जो है वो उनके लोगों को दिया है। Every day, set apart a little time at least to spend time with God. और हर दिन एक समय निकाल कर रखें प्रभु के लिए। Don't say, I'm so busy, my work, my children, all this are taking my time, I have no time. और ये ना कहे कि मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, मेरे बच्चे, मेरा काम सब काम जगह ले ली है, टाइम ले लिया है। And the Lord asks, can't you spend a few minutes with me to talk to me and hear me? और फिर प्रभु हमसे कहेगा क्या क्या तुम थोड़ा भी समय नहीं निकाल सकती हो मुझसे बात करने के लिए, मेरे साथ बिताने के लिए? For the Israelis, it was a command, but for us, it is a request. और यहूदियों के लिए ये एक आज्ञा थी, पर हमारे लिए ये एक विनती है। So we must make it sure, Lord, I want to discipline myself to spend some time with you. और हमें निश्चय करना है कि हाँ प्रभु मैं ज़रूर जो कुछ समय है प्रभु आपके साथ बिताऊँगी। When my children were small, all daytime I was busy with my work and people coming, many things. और जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं व्यस्त रहती थी दिन के समय में लोगों के साथ और बच्चों के साथ। But I could not sleep
without spending at least a few minutes with the Lord. और मैं नहीं सो पाती थी जब तक मैं थोड़ा समय प्रभु के साथ ना बिताऊं। So after everybody went to sleep, I'd get up, wash, and open my Bible and spend little time, read God's word and pray. और जब हर कोई सो जाता था तब मैं उठती थी, मुंह को धोती थी और फिर प्रार्थना करती थी और बाइबल पढ़ती थी। So much so that if I don't do that, one day goes, I feel guilty. I have done something really wrong. I should have spent at least few minutes with the Lord. और इतना अधिक ये था मेरे भीतर कि अगर मैं एक दिन भी ऐसा नहीं करती थी तो मेरे अंदर ये भावना आती थी कि मैंने थोड़ा तो समय प्रभु के साथ बिताना चाहिए था। So, dear sisters, so many things may come up in our life to distract us, but we should keep some time with the Lord. इसलिए प्रिय बहनों, बहुत सारी चीजें आएंगी जो हमें हमें भटकाएंगी, पर फिर भी हमें थोड़ा समय प्रभु के लिए निकालना है। Then God told children of Israel, certain days you must observe feasts like Passover, different festivals you must observe. और प्रभु ने जो है उनके लिए अलग अलग जो उत्सव थे वो रखे थे कि कुछ कुछ दिन जो है तुम्हें वो उत्सव मनाने हैं। You must come together with God, all the other people, and remember what all God has done for you and brought you out of captivity. और तुम सब लोगों को साथ में मिलना है और फिर याद करना है कि कैसे प्रभु दासत्व से आप लोगों को बाहर निकाल के लेकर आया। For us, the Lord says, at least one, whenever you get a chance, meet with God's children. और फिर हमें प्रभु कहता है कि जब भी तुम्हें मौका मिले प्रभु के बच्चों से तुम मिलो। We should not think, oh, today I am tired, I am not going to church. और हमें ऐसा नहीं सोचना है कि ओह आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं चर्च नहीं जाऊंगी। Today, tomorrow my children have exam, so I'm not going today, I have to sit with them. और कल तो मेरे बच्चों की परीक्षा है और आज मैं घर पर ही रहूंगी, मैं नहीं जाऊंगी चर्च। Just like God commanded children of Israel, He calls us, meet with my people. और जैसे प्रभु ने इजरायलियों को आज्ञा दी वैसे प्रभु हमसे भी कहता है कि प्रभु के लोगों से मिलना है। In Hebrews 10, verse 25, later you can see there's this verse, don't forsake the assembling of yourselves with me. और इब्रानियों 10:22 में लिखा है कि आपस में मिलना उससे उसे नहीं भूलो। Don't stop meeting with God's people. और प्रभु के लोगों से मिलना बंद मत करो। Sometimes some people are put in prison for their faith, but even then, in spirit, they spend time with the Lord. और बहुत सारे लोगों को उनके विश्वास के कारण बंदी गृह में डाला गया, फिर भी अपनी आत्मा में थे, वो उस समय को बिताते थे। Thank God He has given us freedom in our country that we can meet together in church. और प्रभु का धन्यवाद कि हमारे देश में हमारे पास ये आज़ादी है कि हम एक दूसरे से कलीसिया में ऐसे मिल सकते हैं। No rule has passed that Christians should not meet together. और ऐसा कोई नियम अभी पास नहीं हुआ है कि जो मसीह लोग हैं वो आपस में नहीं मिल सकते हैं। Even during COVID time, we could meet over Zoom. और कोविड के समय में भी हम ज़ूम के द्वारा मिल सकते थे। Oh, don't neglect meeting together with God's people. इसलिए प्रभु के लोगों से जो मिलना है उसको आप इस तरीके से नकारे नहीं। See, this verse in Second Chronicles 15, there's a verse which says like this, um, 15 verse 2. If you forsake him, he will forsake you. If you uh, f- um, if you follow him, he will bless you. Something like that. अ, If you seek him, he will be found. If you forsake him, he will forsake you. यदि तुम Yeah. उसकी खोज में लगे रहोगे तो वह तुम्हें मिलेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वो भी तुमको त्याग देगा। So, if we forsake the Lord and forget about him, we can only expect that he will forsake us. और अगर हम प्रभु को यूं ही नकारेंगे और उसे खोजेंगे नहीं, भूल जाएंगे, तो हम इस बात का निश्चय करें कि वो भी हमें भूल जाएगा। Only sometimes we come to the Lord when we are in some need, some trouble happens, then only we come to the Lord. और अगर सिर्फ हमें कोई परेशानी है, कोई जरूरत है, मुसीबत है, तभी हम प्रभु के पास अगर आते हैं तो। But we can learn, Lord, throughout my life, let me never forsake you, good times or bad times. और हमें सीखना है कि प्रभु मेरे जीवन भर चाहे भले दिन हो चाहे बुरे दिन हो, मैं कभी भी आपको न त्यागूं। Then I wanted to say how Esther was an orphan girl.
और मैं कहना चाहती हूँ कि जो एस्तेर जो थी वो कैसे एक अनाथ लड़की थी। We know what it is to be an orphan girl. Pardon? We can imagine what it is to be an orphan. और हम कल्पना कर सकते हैं कि एक जो ऑर्फन या अनाथ होना कैसा होता है। They're insecure, they feel nobody cares for them. और वो बहुत ही असुरक्षित महसूस करते हैं, वो उन्हें लगता है कि कोई भी उनकी चिंता नहीं करता है। If we take our daughters to buy something, we tell them, do you like this or do you like that? And they'll say, I like this one. और हम अपनी अपनी बेटियों से कहते हैं कि तुम्हें क्या ये पसंद है या वो पसंद है, और वो कहती है मुझे ये पसंद है, और फिर हम खरीदते हैं उनके लिए। Or they say, I don't like anything, I want another one. और वो कहते हैं कि नहीं मुझे ये कुछ भी पसंद नहीं, कुछ और पसंद है। But for orphan, anything you give them, they are happy. पर अनाथों को अगर आप कुछ भी देंगे तो वो खुश हो जाते हैं। And they may not get anything also. और कई बार तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। Sometimes even though our children have parents, they can be like orphans in और our कई home. बार हमारे बच्चे जो हैं उनके माता-पिता हो सकते हैं, पर फिर भी कई बार वो एक अनाथों की तरह भी हो सकते हैं। I'll tell you how. मैं बताती हूँ कैसे। If we are so busy with our work and with our relatives and so many other things, and we don't have time to listen to our children, they grow up like orphans. और अगर जो है हम हमारे काम में, हमारे रिश्तेदारों में, बाकी चीज़ों में इतना व्यस्त होते हैं कि बच्चों के लिए समय नहीं होता है, तो वो भी एक अनाथ की तरह ही बढ़ते हैं। And we have to be so careful when our children are with us. Don't ever let them feel that they are orphans. और हमें बहुत ही इस चीज़ का ध्यान रखना है जब हमारे बच्चे हमारे साथ हैं कि उनको कभी भी ऐसा महसूस ना हो कि वो अनाथ हैं। Sometimes husband and wife quarrel, fight with each other. The children feel we have nobody, they are fighting, they are like orphans. और जब पति-पत्नी आपस में लड़ते हैं तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हम हमारा कोई भी नहीं है और हम तो अनाथ हैं। We should never let that feeling, insecure feeling, come to our children, और ever. हमें कभी भी हमारे बच्चों के हृदय में वो असुरक्षा की भावना को नहीं आने देना है। And wife say, okay, I'm going off to my parents' house. और कई बार पत्नी कहती है कि हाँ ठीक है, मैं तो मेरे माता-पिता के घर जा रही हूँ। Can children listen to that and think comfortable about that? और जब बच्चे ऐसा सुनेंगे तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। So we have to be so careful as wives and mothers how we conduct ourselves. इसलिए हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि एक पत्नी और एक माता के रूप में हम किस तरीके का व्यवहार करते हैं। And when our daughters, children talk to us, we bend down and listen to them, isn't it? और जब हमारी बेटी, हमारे बच्चे हमसे बात करें तो हम झुककर सुने कि वो हमसे क्या कह रहे हैं। God bends down to listen to our prayer. और प्रभु जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए झुकता है। And we should be like that good mothers, examples to our children. और हमें भी ऐसा होना, एक अच्छी माँ एक ऐसा ही उदाहरण बनती है। Then another lesson we can learn is how the whole nation became captives because of the disobedience. और हम देखते हैं एक और पाठ जो हम सीखते हैं कि पूरा का पूरा देश जो है वो बंदी बनाया गया, गुलाम बनाया गया, आज्ञा ना मानने के कारण। Sometimes some mistakes which we do, our children suffer because of our mistake. और कुछ गलतियाँ जो हम करते हैं उसके कारण हमारे बच्चे जो हैं उस नुकसान को उठाते हैं। So we should always say, Lord, you revealed so many things from your word. Help me to take those seriously. और हमें कहना है कि प्रभु आपने अपने वचन से इतनी सारी बातें बताई हैं, मुझे मदद करें वैसा करने के लिए। Let not my children suffer because of my foolishness and disobedience. और मेरी मूर्खता और मेरी अनागारिता के कारण मेरे बच्चे उस दुःख को ना उठाने पाएँ। Such a searching thing it is, like sometimes we spend many hours watching TV, और कितनी शर्म की बात है कि कई बार हम घंटे जो है टीवी देखने में बिता देते हैं talking with others on the phone. और दूसरों से घंटों-घंटों बात करने में। So many things we do for which our children will suffer. और बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं जिसके कारण हमारे बच्चे को वो दुःख उठाना पड़ता है। Sometimes we say some foolish thing and the children hear it and they suffer because of that. और कई बार हम कुछ मूर्खता की बातें कहते हैं, हमारे बच्चे उसको सुनते हैं और उसके कारण उनको वो हानि उठानी पड़ती है। They may think, oh,
My mom thinks this elder is a very bad elder, and that seed is sown, bitterness sown in the children's heart. और वो बच्चा कहता है कि हाँ, मेरी मम्मी तो कहती है कि वो जो अगुवे हैं, वो तो बुरे हैं, और वो जो बीज है, वो जो कड़वाहट का बीज है, उसके हृदय में बोया जाता है। Even if we don't speak, our children can sense mommy is upset about this thing, that thing. और भले ही हम ना कहें, पर हमारे बच्चे इस बात को जान जाते हैं कि मेरी जो मम्मी है, वो इस का बात या उस का बात के कारण अपसेट है। So we have to be so, as sisters, so careful how we conduct ourselves towards our families and our children. इसलिए हम बहनों को बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों और घर में हम किस तरीके का व्यवहार करते हैं। Then we read how um, uh, Esther grew up in a new country, new culture, everything was new for her. और हम देखते हैं कि जो एस्थर थी, जो एक नए देश में, नए जहाँ का कल्चर, नई भाषा, कैसे उस तरीके से वो बढ़ी वहाँ पर, New religion also. और एक नया धर्म भी वहाँ पर था। But the Lord wants us, His children, to be different wherever we are put. और प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे जो हैं वो अलग रहें, चाहे वो जहाँ भी रहें। We may be forced to stay in some strange country, और हो सकता है कि हम पर दबाव डाला जाए, फोर्स किया जाए किसी अनजान ऐसे देश में रहने के लिए। but we should not copy the things of this world. पर हमें जो है उस दुनिया की जो चीजें हैं उनकी नकल नहीं करनी है। In 2 Corinthians 6, verse 17, there's this verse, be separate. और Don't दूसरा have them. कुरिन्थियों 7 में लिखा है कि उनसे अलग हो जाओ, Come out from among them and be separate. और उनमें से तुम बाहर निकलो, उनसे अलग हो जाओ। And Romans 12:2, we know that verse. Don't be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. और रोमियो 12:2 में भी लिखा है कि जो तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। Now Esther was forced to come to the king, so she had to obey. और जो एस्तेर जो है उसे इस चीज के लिए विवश किया गया कि वो राजा के सामने आए, इसलिए उसने आज्ञा पालन किया। All the beautiful women were brought, और सारी जो सुंदर स्त्रियां थी वो बुलाई गईं। but I want to say something about real beauty. पर मैं आपको जो जो सही सुंदरता है उसके विषय में बताना चाहती हूँ। In Proverbs 31:10, it says, a virtuous woman, her price is far above rubies. और जो नीति वचन 31 में लिखा है कि जो भली स्त्री है, उसका जो मूल्य है वो जो मोतियों से भी बढ़कर है। Dear sisters, our price is far more than even rubies. I'll tell you और why. प्रिय बहनों, हमारा जो मूल्य है वो जो हजारों रूबीज जो है, मोती जो है, उनसे भी बढ़कर है। Because the price paid for us was the precious blood of Jesus. क्योंकि हमारे लिए जो कीमत चुकाई गई वो प्रभु यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू है। To become a child of God, Jesus shed his precious blood. That is the price he paid for us. और हमें उसका बेटे और बेटी बनाने के लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया, और वो बहुमूल्य कीमत है। So don't think, oh, I am nobody, I am of no value. और कभी भी ऐसा इस बात को ना भूले, और कभी ना सोचे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। Our King who chose us says, you're valuable to me because I bought you with the price of blood of my son. और हमारा जो राजा है जिसने हमें बुलाया चुना है, वो कहता है कि मैंने अपने बेटे का लहू देकर तुमको खरीदा है। And there is one beauty which never disappears. और एक जो खूबसूरती है जो कभी भी गायब नहीं होती है, It's called imperishable beauty. और वो है कभी भी अविनाशी सुंदरता। Because as we grow older, women, we think our beauty gets less and less. But this beauty never disappears, this beauty. और हम जो है जैसे जैसे उम्र में बढ़ते हमें लगता है कि हमारी सुंदरता कम हो रही है, पर ये जो सुंदरता है वो कभी भी नहीं जाती है। First Peter chapter 3 verse says, beauty of a meek and quiet spirit. और पहला पत्रस 4 में लिखा है कि जो नम्रता और मन की दीनता है, वही वो अविनाशी सुंदरता है। For Esther, the beauty treatment was 12 months. और एस्तर जो थी उसके जो सुंदर बनाने का जो सारा ट्रीटमेंट था वो 12 महीने चला। For us, this beauty treatment is throughout our life.
और हमारे लिए जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है पूरे जीवन भर चलता है। Throughout our life, deny ourselves, take up the cross, have a hidden life with Christ. और जो है उसमें हमें जो है अपने आप का इनकार करना है, उस क्रूस को लेकर चलना है, भीतरी रूम में वही हमारी सुंदरता है। Then we get that imperishable beauty. और फिर जो कभी ना खत्म होने वाली सुंदरता हमें मिलती है। Earthly beauty passes away, but this imperishable beauty becomes more and more. और जो संसार की जो सुंदरता है वो तो चली जाती है, पर ये जो अविनाशी सुंदरता है ये और अधिक होती है। And throughout our life, we have to be faithful in the small things, in the hidden areas of our life. और पूरे जीवन भर हमारी छोटी-छोटी बातों में, हमारे गुप्त जीवन में हमें विश्वास योग्य होना है। So every little thing happen to our life, in our life is important to get this beautiful spirit, meek and औ quiet spirit. और हर एक छोटी-छोटी चीज़ जो हमारे जीवन में होती है वो महत्वपूर्ण है, वो जो नम्र और दीनता की जो सुंदरता है उसको पाने के लिए। Then another thing we learn from the story of Esther is, even in the palace, person can be lonely. पढ़ Even in a palace, a person can be lonely. और एक और चीज़ जो हम एस्तेर की कहानी से सीखते हैं कि जो महल है उसमें भी वो व्यक्ति अकेला हो सकता है। We might be in the richest country in the world or the poorest place, wherever we are, we can be tempted to be lonely. और हम हो सकता है कि बहुत ही जो अमीर देश में हो सकते हैं या फिर बहुत ही गरीब देश में, फिर भी हमारी परीक्षा हो सकती है ये महसूस करने के लिए कि हम अकेले हैं। But we get comfort. God has put me in this place. पर हमें इस बात से सांत्वना मिलती है कि प्रभु ने मुझे इस जगह पर रखा है I obeyed the Lord and He has put me in this place. और मैंने प्रभु का पालन किया और प्रभु ने मुझे इस जगह पर रखा है। Esther didn't choose to be in the beauty contest and her name should come in the front page of the book. She didn't choose that. और एस्थर ने ये नहीं चुना था कि वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाए या फिर फ्रंट पेज में उसका नाम आए, उसने इस बात का चुनाव नहीं किया था। God put her there. प्रभु ने उसे वहां पर रखा। So we get security. Lord, if you're with me and I'm in the center of your will, that's more than enough. और जब हम कहते हैं कि प्रभु आपने मुझे यहाँ रखा है और मैं आपकी इच्छा के उस केंद्र में हूँ, तो वो मेरे लिए काफ़ी है। You have chosen me, Lord. पाड़न God has chosen us. और प्रभु ने हमें चुना है। From one person from one family, one person from another family, different countries, different languages. God chooses one person here, and brings us into His kingdom. और प्रभु एक परिवार से एक को चुनता है, एक परिवार से एक को चुनता है, एक देश से किसी को चुनता है, ऐसे अलग-अलग करके प्रभु हमने हमें चुना है। And He has brought us to Himself. और फिर प्रभु ने हम सबको उसके पास लाया है। In Esther's case, she got comfort. Her guardian is outside her. और एस्तर की कहानी में एस्तर को इस बात से सांत्वना मिली कि उसके जो अंकल जो थे वो महल के बाहर थे All her life, she submitted to her uncle. और उसके जीवन भर उसने अपने आप को अपने अंकल की अधीनता में किया। For us also, dear sisters, young girls, God has put authority over us. और हमारे लिए भी प्रिय बहनों, हमारे जीवन में प्रभु ने एक अधिकार को रखा है। Unmarried girls, the parents are there for और as अविवाहित authority. बहनों के लिए उनके माता-पिता हैं Married wives, our husbands are our authority. और हम जो शादीशुदा बहनें, हमारे पति जो है हमारे लिए वो अधिकारी हैं। And for all of us, elders in the church are our authority. और हम सब के लिए कलीसिया के जो अगुवे हैं वो हमारे वो अधिकारी हैं, अधिकार हैं। And there is no exception to any of us. We have to submit to authority. और हम में से किसी के लिए भी इसके लिए एक्सेप्शन नहीं है, हम सभी को उस अधिकार की अधीनता में अपने आप को लाना है। Sometimes we think, teenagers, I'm in college, I'm free, I can do what I want. और टीन्स जो होते हैं कॉलेज में कई बार सोचते हैं कि अब तो मैं आज़ाद हूँ, मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। But the Lord says, don't go astray. Punishment will come sooner or later. प Submission is the rule for us. और प्रभु कहता है कि इधर-उधर मत जाओ, आज नहीं तो कल वो पनिशमेंट ज़रूर आएगी, इसलिए अधिकार के अधीन अपने आप को करो। So even in lonely places, like Esther, God gives us few people with whom we can pray. और ऐसे जो अकेले स्थान है, वहाँ पर भी प्रभु कुछ ऐसे लोगों को देगा जिनके जिनके साथ हम प्रार्थना कर सकते हैं।
We may be far away from many people, but if we have a phone, we can pick up the phone and say, "Please, sister, pray with me. facing some trouble." You don't have to tell any details. और हो सकता है कि हम कहीं दूर देश में हों, पर फिर भी हम वहाँ पर किसी बहन को फ़ोन करके कह सकते हैं कि बहन ऐसी बात है और आइए हम लोग साथ में प्रार्थना करें। आपको पूरा विवरण देने की ज़रूरत नहीं है उनको। We can find fellowship wherever we are. जहाँ भी संभव हो उस संगति को आप ढूँढें। Then we know how trials come. Even to Esther, trials come. To all of us, trials come. और हम जानते हैं कि परीक्षा कैसे आती है, अस्थिर के लिए कैसे हम सभी के लिए वो परीक्षा आती है। God allows trials in our life to test us and to change us and make us patient. और प्रभु जो है उन परीक्षाओं को लेकर आता है हमारी परीक्षा लेने के लिए और हमारे अंदर वो धीरज लाने के लिए And to depend on Him, and our character is changed. और उस पर निर्भर होने के लिए और ताकि हमारा जो कैरेक्टर है वो बदले। And we should always remember God has kept me here for a purpose, and He'll see me through. और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्रभु ने एक उद्देश्य के लिए मुझे यहाँ रखा है और वो उसकी नजरें मुझ पर है। And we learn from Esther, her first response was, "I'll pray, fast and pray." और हम सीखते हैं कि पहले उसने सबसे पहले कहा कि मैं उपवास रखूंगी और मैं प्रार्थना करूंगी। Prayer is not the last thing, last resort. Prayer is the first thing we can do. और प्रार्थना जो है सबसे आखिरी में करने की बात नहीं, सबसे पहले करने की बात है वो। In every situation, Lord, let me ask you first, please help me. और हर एक परिस्थिति में प्रभु मेरी मदद करे कि मैं सबसे पहले आपसे पूछूं, आपसे प्रार्थना करूं। And fasting may not be necessary in food, but it is a discipline. और जो उपवास है वो हर बार जरूरी नहीं कि खाने का ही हो, पर वो जो एक अनुशासन है उसका भी उपवास है। Sometimes we have to eat food because we have to take care of our health and our children. कई बार हमें खाना भोजन करना पड़ता है क्योंकि हमें अपना और बच्चों का ध्यान रखना होता है। But fasting can be in time. We can say, Lord, I get up little earlier to spend time with you and pray. और उपवास जो है वो टाइम का हो सकता है कि प्रभु मैं जल्दी उठूंगी और मैं आपके साथ प्रार्थना में समय बिताऊंगी। And while we are praying, God is working. और जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तब प्रभु कार्य कर रहा है। And then how Esther dealt with it, she didn't go straight away and tell her sorrows to the king. She had और wisdom. एस्थर ने इन सारी बातों में कैसे व्यवहार किया, वो सीधा जाके राजा से बात नहीं किया, उसने बहुत ही बुद्धिमानी से सारी चीज़ों को उसका सामना किया। Whenever we are in trouble, don't rush and do something. Wait, pray, जब भी कोई मुसीबत हो, आप एकदम से भागे नहीं, रुके, प्रार्थना करें and take your time and ask God for wisdom how to deal with it. और समय लें और प्रभु से बुद्धि माँगे कि कैसे इस परिस्थिति में मैं करूँ। So we are coming to the end of our session, but these last days, Satan is so furious. He wants to attack God's people. और जो शैतान है इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वह उसके प्रभु के बच्चों पर वो हमला करना चाहता है। He uses people to trouble us, maybe in our workplace or wherever we are. और वे लोगों का हमारे काम की जगह में या जहाँ कहीं भी है, लोगों का इस्तेमाल करता है हमें परेशान करने के लिए। I just want to remind of just few things. Jesus said, "Fear not when these things happen." और मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रभु ने कहा कि डरो मत, जब ये सब चीज़ें होती हैं, डरो मत। Our, our battle is not with people, but with Satan and the demonic forces. और हमारा जो युद्ध है, वो लोगों से नहीं है, पर शैतान और शैतान की शक्तियों से है। Don't waste your energy fighting with people, but fight using the word of the promises of God. और अपना समय जो है वो लोगों से से लड़ने में बर्बाद ना करें, बट उस शैतान से प्रभु का जो वायदा है, वचन है, उसका इस्तेमाल करके शैतान से लड़ने के लिए करें। The battle is fought on our knees यस। with God. और हमारा जो युद्ध है वो हमारे घुटनों पर आकर लड़ा जाता है। So fear not in any situation. इसी किसी भी परिस्थिति में आप डरे नहीं। And have faith, just like Esther have faith that everything will turn out for good. और एस्थेर की तरह ये विश्वास रखें कि सब चीजें जो है वो भलाई को लेकर आएगी। And we go forward with faith and boldness.
और फिर हम उस विश्वास के साथ, हुई के साथ आगे बढ़ें and say, Lord, I'll depend on you, and I have faith that in the end everything will turn out for my good. और कहें कि प्रभु मैं आप पर निर्भर होती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि सब कुछ जो है वो हमारे भले के लिए ही बदलेगा। I'll do my part in seeking you and your kingdom first. और मैं मेरा जो भाग है आपको और आपके राज्य को पहले खोजने का मैं वो करूँगी। And as the days are approaching for the Lord's coming, let me not forget meeting with your people in fellowship. और जैसे-जैसे प्रभु का दिन और करीब आता है, मैं प्रभु और प्रभु के लोगों के साथ संगति करना ना छोड़ूँ। So, shall we close in prayer? और फिर हम प्रार्थना में बंद करेंगे। Our Heavenly Father, we thank you for this time. हमारे स्वर्गीय पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, your word is so rich. प्रभु आपका वचन कितना ही धनी है प्रभु। We can get so much of treasure from your word और उससे प्रभु हमें कितना अधिक खजाना आपके वचन से मिलता है। and help to live our daily life. और प्रतिदिन का जीवन बिताने के लिए वो मदद हमें मिलती है। Thank you, Lord, for the Holy Spirit who's working in our heart and giving us strength. और आपकी जो पवित्र आत्मा हमारे हृदय में काम कर रही है और हमें जो बल दे रही है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। Help us to be true and faithful to you in these last days. प्रभु इन अंतिम दिनों में आपके लिए वो विश्वास योग्य और सत्य बने रहने के लिए हमारी मदद करे प्रभु। So we will have no regret when we meet you. ताकि प्रभु जब हम आपसे मिले तो हमें कोई खेद ना हो। Thank you, Lord Jesus, so much for this precious time. प्रभु इस बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। In your name we pray, प्रभु Lord यीशु Jesus. के नाम से मांगते हैं। आमीन। Amen.